Hello, students. I am Akriti and I welcome you all to English Honors classes. I hope you all are doing great. Today, in this particular session, I am going to break down the syllabus for the students of undergraduate जिनके इग्नू के एग्जाम्स काफी नजदीक हैं and the paper code for the syllabus that I'm going to discuss is BEGC 103 and it is titled as Indian Writing in English. So, without doing further ado, I will just share my screen so that you all will be able to see the things clearly. Okay, so I hope the screen is visible to you all. Okay, Indian writing in English. In this slide, we will learn about the major things that you have to learn ताकि एग्जाम्स में आपके अच्छे खासे नंबर बन जाए. Okay, so before directly jumping into the syllabus thing, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हमारा जो संस्थान है इंग्लिश ऑनर्स क्लासेस और भी कई सारी चीज़ों में आपकी मदद करता है. जैसे कि अगर आप में से कोई यूजीसी नेट स्लेट बेट या जेट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर बीपीएससी टीआरई यूजी पीजी इंग्लिश मेजर फ्रॉम ऑल यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार एंड इग्नू एंड ऑल्सो ऑफ झारखंड. You can contact us on the given number, that is 8102622251. You can also visit us on the given website. And I am just going to the syllabus. And before that, just a quote that literature needs clarity and not shortcuts. Moving forward, what is the course overview or scope of this paper? इस पेपर को पढ़ने के बाद आपके पास actually क्या होगा? The historical context, you will be aware of the rich landscape of Indian literature in English from its 19th century beginning, ब्रिटिश colonial influence के बाद और वो कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है उसका, फिर एक कैसे एक डिस्टिंक्ट वॉइस वो खुद में अपना एक आवाज बना लिया इंडियन लिटरेचर, हम उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे. साथ ही साथ कुछ पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव जैसी चीज़ों पे कि कोलोनाइजेशन के बाद जब हम लोग फ्री हो गए थे ब्रिटिश राज में उस वक्त और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा लोगों को, या फिर और भी सारी चीजें जो कि जिसका जानना और जिस पे काम करना बेहद जरूरी रहा, उन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे. दिस पेपर इज solely dedicated to Indian voice written in English tongue. That means how we adopted the language English from Britishers and now we are using that language to tell our stories. Isn't it very beautiful? Or isn't this very mind blowing? So we will look into it. The curriculum structure is divided into 4 different blocks और इन 4 different blocks में आई गेस आपके 18 to 19 यूनिट्स होंगे जो कि एक ब्लॉक में 4 से 5, 5 से 6, 6 से ज्यादा शायद ही मिलेंगे. जो 4 ब्लॉक हम डील करने वाले हैं वो पहला है टाइगर फॉर मालगुडी, सेकंड द बाइंडिंग वाइन, थर्ड वी विल डील सम इंडियन पोएट्री एंड इन द फोर्थ block you are going to read about some short stories. So, okay, exam is on 13th June. We don't have much time. You need to cram up the things as soon as possible. जितना हो सके उतना आपको पढ़ लेना चाहिए. Novel. What is novel? A profound study of early and contemporary Indian English fiction, balancing philosophical satire and realistic narratives of female emancipation. Not only female emancipation, we will learn more about it. So, this particular one, the block one, is titled as A Tiger from Malgudi. A Tiger from Malgudi is a novel written by a very prominent writer, R.K. Narayan. Okay, so the unit 1 deals with Indian English novel. किसी भी चीज के बारे में पढ़ने से पहले हमें उसके इतिहास का पता होना चाहिए. तो ये नोवेल है. अब नोवेल कहाँ से आया, इसे शुरुआत किसने की, वो सारी चीजों के बारे में भी जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है. कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता दूं उसके बाद फिर मैं यहाँ लेकर चलती हूँ. पहले इंडियन इंग्लिश नोवेल. इसमें आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में पढ़ना है कि सबसे पहले नोवेल का शुरुआत किसने किया, हु इज द पायोनियर. सो हु इज द पायोनियर मैं आपको बता देती हूँ.
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एक किताब है राजमोहन वाइफ, वो सबसे पहला इंडियन इंग्लिश नॉवल है। देन वी विल रीड अबाउट थ्री सिग्निफिकेंट नोवेलिस्ट जिनको ट्रिनिटी भी कहा जाता है। वो है मुल्कराज आनंद, राजा राव एंड आर के नारायण। पोस्ट इंडिपेंडेंस नोवेलिस्ट के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। आजादी के बाद कौन कौन से राइटर थे जिन्हें हम पढ़ते हैं, आखिर ऐसी क्या है उनकी लेखनी में कि हम उन्हें पढ़ते हैं। And women novelists are also very important because they show the plight of a woman. Okay, so we will move here. In second unit, you have to go through a detailed summary for this novel, A Tiger from Malgudi. In depth, आप अपने इग्नू के कंटेंट से पढ़ लीजिए या फिर और किसी सोर्सेस से भी आप पढ़ सकते हैं। And in the third unit, you are going to analyze this whole novel. समरी एंड एनालिसिस में थोड़ी सी डिफरेंट है। समरी आप केवल एक पढ़ लेते हो कि उसमें क्या लिखा हुआ है। एनालिसिस करने का मतलब है आप उसमें क्या देख रहे हो, आपको उसमें क्या कौन सी चीजें नहीं दिख रही हैं। एंड द यूनिट 4 डील्स विद अ टाइगर फ्रॉम मालगुडी, जैसे स्टाइल एंड कैरेक्टराइजेशन क्या है इसके। एक नोवेल में कई तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, सारे कैरेक्टर किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसमें 3 या 4 तरह की थीम दी होती है। हर एक थीम अपने जगह पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं नारायण के प्रोज स्टाइल, जो कि उनकी इंडियननेस, वो इंडियननेस को कैसे दिखा रहे हैं। उनके नैरेटिव टेक्निक्स क्या है, वो किस तरीके की लैंग्वेज की यूज कर रहे हैं। देन उन्होंने यहाँ पे सटायर, आयरनी, ह्यूमर, इन चीजों के बारे में बात किया है। मेजर कैरेक्टर्स के बारे में जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे कि राजा, द टाइगर एंड कैप्टन। माइनर कैरेक्टर्स को 40 मोमेंट के लिए आप स्किप भी कर सकते हो। सो दिस इज इट फॉर ब्लॉक 1। वी विल मूव टूवर्ड्स ब्लॉक 2। आई होप द थिंग इज क्लियर दैट आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। इसकी हिस्ट्री के बारे में आप जान लीजिए कि नोवेल सबसे पहले किसने लिखा था, ट्रिनिटी कौन है, एंड दीज थिंग्स। फिर टाइगर फॉर मालगुडी के डिटेल समरी, आपकी उसमें क्या ऑब्जर्वेशन है, आप उसमें क्या क्या चीज देख पा रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है। इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, द स्टाइल दैट आर के नारायण हैज यूज्ड। आफ्टर दैट, Block 2, The Binding Vine. The Binding Vine is a novel written by a very prominent and contemporary Indian feminist writer, Shashi Deshpande. We will just go through things. इन्होंने इंट्रोडक्शन टू नोवेल में क्या दे के रखा है। सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू नोवेल में हम ये देखेंगे कि एक नोवेल क्या होता है, एक नोवेल का एस्पेक्ट क्या होता है। एस्पेक्ट क्या होता है नोवेल के, कि उस नोवेल में हमने किस किस चीज के बारे में देखनी होती है, उसकी थीम, उसकी प्लॉट, उसके कैरेक्टर्स, नोवेल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया, एंड द स्टाइल दैट द नोवेल इज टॉकिंग अबाउट। एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोवेल, जैसे कि पिकारेस्क होती है, गॉथिक होती है, एपिस्टोलरी होती है, साइकोलॉजिकल होती है, हिस्टोरिकल होती है, रीजनल होती है। गॉथिक जिसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स है, एपिस्टोलरी जो कि लेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल जो पुराने किसी किस्से पे लिखा हुआ है, साइकोलॉजिकल जो आपके दिमागी किसी के दिमाग की कथा को सुना रहा है, रीजनल जो किसी एक पर्टिकुलर जगह से बोला जा रहा है। देन यहाँ पे हमने देखा कि राइज ऑफ इंडियन नोवेल इन इंग्लिश, उसे आप पढ़ना है, उसे आप पढ़ सकते हो। देन वुमेन्स राइटिंग। देन व्हेन यू आर रीडिंग अबाउट समवंस वर्क, तो आप राइटर के बारे में एक गुड फुल फ्लेजेड इंफॉर्मेशन जरूर रखिए। लाइक शशि देश पांडे का एक बायोग्राफिकल स्केच दिया हुआ है, एंड आई वुड सजेस्ट यू ऑल to read, to go through each and every single line that they had provided you for the writer. After that, uh, हमें बाइंडिंग वाइन की समरी एंड एनालिसिस देखनी है इन डिटेल। किन किन थीम्स पे बात किया गया है वो भी देखना है। आई विल जस्ट गो थ्रू थीम्स वंस, जस्ट सेकेंड। अब ये फेमिनिस्ट नोवेल है, तो इसकी थीम्स क्या क्या है। रेप, a very common issue nowadays. Feminism, the urge to get equality for male and female both. Love, marriage and sex, and human relationships. So these are the major themes. इन सारे themes पे जो भी चीजें आपको important लगे, आप वो सारी चीजें पढ़ लीजिए। After that, okay, the characterization. Characters आर द थिंग जो कि पूरे के पूरे नोवेल को बांध के रखते हैं, तो इनके बारे में जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो द कैरेक्टर्स इन द नोवेल आर ऊर्मी, किशोर, मीरा, शकुताई एंड कल्पना। तो जब आप एनालिसिस करेंगे, जब आप समरी पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे कैरेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है, एंड इन
सारे कैरेक्टर्स के इन डेप्थ नॉलेज होना भी आपके लिए जरूरी है। सो फॉर दैट पर्पस आप बाइंडिंग माइंड की इन सारे मेजर कैरेक्टर्स के एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और उसे अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। सो आई थिंक ब्लॉक 2 इज क्लियर टू यू ऑल। आफ्टर दिस, ओके, जस्ट मैंने एक छोटी सी चीज बना के रखी है जिससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी। लाइक, व्हाट आर द थीम ऑफ टाइगर फॉर मालगुडी एंड बाइंडिंग वाइन। इन दो नोवेल के बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा एक आध चीज डाल दिया जो आपको हेल्प करेगी। Like, Tiger for Malgudi is about allegory, spiritual detachment and fate. Binding Wine दूसरी तरफ फीमेल वॉइस के ऊपर बात कर रही है, डोमेस्टिक अब्यूज के ऊपर बात कर रही है, और साथ ही जो सोसाइटी के पेट्रियार्कल कंस्ट्रक्शन है उस पर बात कर रही है। इसकी नरेटिव वॉइस फर्स्ट पर्सन है, साथ ही साथ बाइंडिंग वाइन की भी नरेटिव वॉइस फर्स्ट पर्सन है। And tone and motive of Tiger for Malgudi is very light-hearted, satire, humor, and folklore, whereas for The Binding Wine, it is introspective, serious, and psychological depth. क्यों? क्योंकि ये एक सीरियस इशू से डील कर रही है द बाइंडिंग वाइन। ओके। एंड टाइगर फॉर मालगुडी एक लाइट हार्टेड सटायर है, ह्यूमर है, जो कि कल्चरल चीजों से डील कर रही है। सो अब बेसिक सी चीजें जो आपको एक आध पॉइंटर्स यहाँ से मिल जाए। तो द पार्ट 2 ऑफ दिस डील्स विथ पोइट्री एंड स्टोरीज। हमें कई सारे पोएम्स पढ़ने हैं। सो जो सबसे पहली राइटर है वो है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू एक बहुत ही प्रोमिनेंट वॉइस है इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री राइटिंग। और अगर हम लोग फ्रीडम की कहानी देखें तो सरोजनी नायडू इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वॉइस, क्योंकि शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू टेक पार्ट इन समथिंग कॉल्ड पॉलिटिक्स। वो यूपी की सबसे पहली गवर्नर रह चुकी हैं। सरोजिनी नायडू को हम लोग भारत की कोकिला भी कहते हैं। इनकी ये जो तीन कविता है, पैलिनक्विन बियरर्स, द बर्ड ऑफ टाइम एंड बैंगल सेलर्स, आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बहुत छोटी छोटी कविता है, आप अगर चाहें तो एक दिन में तीनों को पढ़ सकते हैं आराम से। द वर्ड पैलिनक्विन बियरर्स इज ट्रांसलेटेड एज जो लोग पालकी उठाकर ले जाते हैं। द बर्ड ऑफ टाइम एंड द बैंगल सेलर्स। मैं सजेस्ट करूंगी कि इन सारे के लिए आप पोएम पढ़ लें, क्योंकि पोएम काफी छोटी छोटी है। साथ ही साथ उनको क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर लें। द नेक्स्ट राइटर दैट वी आर watching on the screen is Nissim Izigal. He is again a very prominent. इनकी अपब्रिंगिंग जो है काफी ज्यादा मल्टी कल्चरल है। इनकी ये जो दो कविता है, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन एंड एंटरप्राइज, इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन की इस पोएम में हम लोग देखते हैं कि कैसे एक रात पोएट के घर में एक स्कॉर्पियन आ जाता है और उनकी मदर को काट लेता है। और उस पूरी रात की कहानी हम लोग देखेंगे इस पोएम में। द लैंग्वेज यूज्ड बाय एजिकल इज आल्सो वेरी lucid. You can read it and you will be able to understand that. The poem Enterprise again deals with a group of friends and their journey to a place, और उस जर्नी के बीच में जिस भी उतार चढ़ाव आते हैं उनके बीच में, उन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। सो आई वुड सजेस्ट कि पोइट्री के कोई भी पार्ट आप ना छोड़ें, हर एक पोएम को आप खुद से पढ़ें, बिकॉज द लैंग्वेज बहुत ईजी है एंड आई एम श्योर कि आप उसे बहुत ईजिली कर पाएंगे। यूनिट 3 डील्स विथ ए के रामानुजन और इनकी दो कविता, लुकिंग फॉर अ कजन ऑन अ स्विंग एंड अ रिवर। Okay, I will just go through his slide. A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan is also very prominent Indian writer. तो इन्होंने एक तो पहले राइटर की इन डेप्थ इन डिटेल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उस पोएम में इन लोगों ने किन किन लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं इमेजरी, वर्सिफिकेशन, इमेजरी, सिमिली, मेटाफर, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल पोएम्स में ज़्यादातर होता है। तो इन सारी चीज़ों पे हमें एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेनी होती है, ताकि एग्जाम में जब आपके पास आए तो आप उसे लिख सको। ओके। Unit 4 deals with Kamala Das. She is again a very prominent Indian writer. She is a confessional poet. She talks about female desire very openly. इनकी ये जो दो कविता है, द माई ग्रैंड मदर्स हाउस एंड ब्लड, इज अगेन वेरी प्रोमिनेंट। एंड इनकी कविताएं भी आपको पढ़नी चाहिए, ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखती हैं। जस्ट स्मॉल इंफॉर्मेशन जो मैं कमला दास के बारे में आपको देना चाहूंगी। इनकी
पेन नेम है एक, माधवी कुट्टी. You could use this in her biography. I would suggest ki make a list of all the writers and prepare a biography of around 200 to 250 words. That is going to help you a lot in your exam. And try practicing writing answers. So, the block 4 deals with short stories. इसमें हमें 4 यूनिट है. सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू द शॉर्ट स्टोरी. व्हाट इज शॉर्ट स्टोरी? इट इज ऑब्वियसली बिगर देन अ पोम एंड स्मॉलर देन, वेरी स्मॉलर देन अ नोवेल. तो यहाँ के जो कंटेंट दे रखा है इग्नू वालों ने, वो ये है कि व्हाट इज अ शॉर्ट स्टोरी. एक शॉर्ट स्टोरी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? हाउ शॉर्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी? व्हाट इज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट? व्हाट इज इट दैट मैटर्स इन अ शॉर्ट स्टोरी? ओके, दीज आर द फ्यू एस्पेक्ट दैट यू हैव टू लुक. देन शॉर्ट स्टोरी एंड नोवेल के बीच में कंपैरिजन, राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, एंड देयर आर सम हिंट्स आप शॉर्ट स्टोरी को कैसे पढ़ सकते हो. अगेन प्लॉट इज इंपॉर्टेंट थिंग, characters, style, the technique of storytelling, and no doubt time and place when it is trying to deliver the story. Okay? So, the first short story is The Lost Child by Mulk Raja Anand. There is some spelling mistake, sorry for that. So, in this, what is the thing that we are going to see? सबसे पहले तो द लॉस्ट चाइल्ड की एक गुड इंटरप्रिटेशन आप लोग पढ़ लीजिए जो यहाँ पे भी दे रखे हैं. उसकी प्लॉट क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, देन व्हाट आर द प्रोज स्टाइल दैट दे आर फॉलोइंग. दिस मच थिंग इज गोइंग टू वर्क. After that, The Other Woman by Deena Mehta. Deena Mehta is very contemporary writer. Deena Mehta is a Indian contemporary writer. And in this, we will see कि आपको एक टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन पढ़ लेनी होगी. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स यहाँ दे रखे हैं जो कि हैं मगन लाल, विमला एंड सुनील. फिर एज सेम कुछ बैकग्राउंड जान लेना है एंड द प्रो स्टाइल. ओके, आफ्टर दैट द स्विमिंग लेसन्स बाय रोहिंटन मिस्त्री. रोहिंटन मिस्त्री एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक on the life and works of each and every writer. Then analysis of text, their theme, characters, narrative technique, and background. All these things are going to go good for your exam. After this, how it is going to be evaluated, you all know that you all have submitted some assignment still, और आपके जो end term के questions होंगे वो 100 marks के होंगे. आपको उससे भी देखना है. That I have provided some of the question papers. I will just go through one question paper. Okay, the latest one, I guess, June 2025. Okay. 4 क्वेश्चन आपके आरटीटीसी से आते हैं जो क्वेश्चन 1 में होते हैं. इसके लिए आपको पोएम्स पढ़ने की बहुत ज़्यादा नीड है. तो यू शुड रीड पोएम्स ताकि आप आरटीटीसी कर पाएं. जैसे कि ये वाला मैं देख के आपको बता सकती हूँ. माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन. दिस इज फ्रॉम द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन बाई निस्सन म्यूजिकल. द सेक्शन बी हैज दिस क्वेश्चन कि आपको किसी 2 पे लिखना है. तो लाइफ एंड वर्क्स ऑफ आर के नारायण, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी राइटर का लाइफ एंड वर्क, उसकी बैकग्राउंड जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज गो फॉर दैट. इंडियन वुमेन्स राइटिंग इन इंग्लिश, यहाँ हम शशि देश पांडे, कमला दास, इन सारे राइटर्स के बारे में बात कर सकते हैं. इमेजरी इन ए के रामानुजन्स अ रिवर. सो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम अ पोएम. एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी. तो जब मैंने ब्लॉक 3 के शॉर्ट स्टोरी का यूनिट 1 दिखाया था तो वहाँ एक डिटेल मटेरियल दिया हुआ है शॉर्ट स्टोरी के ऊपर. सो यू शुड गो थ्रू दैट. इन द सेक्शन 3 says that there are some 7 questions और आपको उनमें से केवल 3 ही अटेम्प्ट करनी है. सो द पहला क्वेश्चन बोल रहा है, डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेज इन द लाइफ ऑफ टाइगर इन अ टाइगर फॉर्म मालगुडी. In-depth summary will and analysis will help you. Discuss the themes in Shashi Deshpande's The Binding Wine. Again, in-depth analysis and summary
And reading of theme and background is going to help you. After that, this question, attempt a critical appreciation of Nrsimha Mizik's The Night of Scorpion. This particular poem is very important. ये जरूर ही पूछता है हर बार, तो आप ये पढ़ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से. Okay, critical appreciation of each and every poetry is very important. Then the plot of The Lost Child is symbolic rather than straightforward. Discuss. मैंने बताया था कि प्लॉट पढ़ना शॉर्ट स्टोरीज का काफी इंपॉर्टेंट है. After that, critically analyze Rohinton Mistry short story Swimming Lessons. Again, you have to critically analyze. So the basic thing that you have to look for in each and every part of your syllabus is summary, in-depth analysis, characters, plot, and themes. And for the RTTC part, आपको अपनी poetry वाली section को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है. So I hope the things are clear to you all, and all the best for your paper that is going to happen soon. And if you have any query, you can put a message in our comment box. So thank you. Happy reading to you all.